So we will start our lecture of class 10 from life processes chapter, but the first topic of that chapter is actually digestive system, because actually the life process chapter which is there in class 10, it will open to 15 or 16 chapters in class 11, and that is called plant and animal physiology. And around if you expect around 20 plus questions out of 90 will come in NEET from this topic, more than 20, because animal physiology say around 16 aa jata hai. Okay, so it's more than 20-25 questions will come from this topic. Okay, so this is the concept. Okay, so now we will go into our digestive system. So we'll try to draw a simple drawing, and we will try to make the digestive system in only 2 lines. Okay, तो हम लोग actually पहले discuss कर लेते हैं that the digestive system is actually made up of 2 components. कौन कौन सा? One is called the alimentary canal, और इसको हम कहते हैं gut, और इसको हम कहते हैं GIT. What is the full form of GIT? Gastrointestinal tract. Okay, and this gastrointestinal tract is just like ma. Your mummy, ma. M stands for mouth and A stands for anus. So from mouth to anus, the tube which you are studying is actually called alimentary canal. Now, on the other side of the alimentary canal, there is the associated glands. Okay? Associated glands. Now, these associated glands, they are again of 2 types. Okay? One is extrinsic glands and one is intrinsic glands. Fine. Now, जो extrinsic gland है, this lies outside the gut. Okay, but the intrinsic gland है, these lie within the gut tissue. तो ये उसके अंदर होंगे. तो इसीलिए कौन कौन से ग्लैंड आपका एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा बताइए? Salivary. Keep talking. If you are silent, I will cancel the class. I don't like silent classes. You have to keep talking. Otherwise, तो घर में क्लास होने से तो फाड़ दिए होते अभी. So always keep talking. Silence हुआ for 5 minutes. I'll end the class. I don't tell anything else. The salivary glands will be of 3 types. In humans, what are they? Parotid, then submaxillary, and last is sublingual. Okay, parotid, submaxillary, इसको submandibular बोल सकते हो आप, and sublingual. So these are salivary glands. Then the next extrinsic gland is your liver, pancreas, and gallbladder. So all of these lie outside the digestive system. But in intrinsic glands, what we will write example? So here आप लिखोगे basically goblet cells. ये आपका म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं थ्रूआउट. ये थ्रूआउट GIT होता है. दिस इज प्रेजेंट थ्रूआउट GIT. Second intrinsic gland is gastric glands. Gastric glands. And the third intrinsic gland is
crypts of Leverkusen. Crypts of Leverkusen, and last is Brunner's gland. Okay, so collectively आप ये दोनों को small intestinal gland भी बोल सकते हैं. Okay, so collectively you can call it small intestinal gland. Understood? So this is the basic discussion of the digestive system and the origin of digestive systems. Very very important. So origin क्या है digestive system का? This is yolk sac, endoderm. Okay, तो actually endoderm से आपका digestive system बना है. So therefore हम उसको क्या कहते हैं? Endodermal. Understood? So this is the basic introduction of this topic. Next, we will go and draw, okay, the alimentary canal. So as I promised you that we will try to draw this alimentary canal in only 2 lines. हम सिर्फ 2 लाइन बनाएंगे. Now actually I have a very wide board, तो इसलिए छोटा सा बनेगा, आप उसको ध्यान से बनाइए. So now suppose first line हम लोग लेके जाएंगे. So we will take the first line like this. Okay, this, now this, and this. So बन गया first line सबका. Make it. आप एक full page drawing बनाएंगे. So ये आपका full page drawing. Okay, so this is a full page drawing. Now ये आपका first line. So always while you are drawing, always think कि मैं mouth बना रहा हूँ, buccal cavity है, pharynx है, larynx है, esophagus है, stomach है, duodenum है, jejunum है, ileum है, colon है, rectum है. Okay, so this is our first line. So now we'll complete the second line. So we will draw like this. Okay, तो ये small intestine है, तो इसलिए इसको हम पतला बनाएंगे. ये large intestine है, इसलिए हम इसको मोटा बनाएंगे. And we will show the folds of the large intestine. ठीक है? So ये आपका something like this. It will look like this. Fine. So this is your alimentary canal. आ गया मजा? So this is the first and second line. So we have drawn the alimentary canal in only 2 lines. So now we will try to level the parts. Okay, as given in NCERT. So okay, the card है. Now, so अब आप देखिए ये जो माउथ है, तो हम माउथ से कुछ एक बाहर निकालेंगे. So माउथ से क्या बाहर निकलेगा? So this is the tongue and these are the teeth. है कि नहीं? तो ऐसे हम लोग बनाने के लिए टंग एंड टीथ बना दिए. क्लियर? So अब लेवलिंग कर दिया जाए. So the एकदम the first part. So this is called the mouth. तो ये जो है हमने बनाया upper jaw, ये जो हमने बनाया lower jaw, and this thing which you have made is called the tongue. है कि नहीं? तो ये जो चीज है आपने बनाया, this is the buccal cavity. See, I will level everywhere I can draw, but you have to draw a level only on the right hand side because you are a student. तो आपको हर लेवलिंग राइट हैंड साइड में करना है. So ये बकल कैविटी हो गया. तो उसके बाद आ जाएगा आपका फेरिंक्स.
तापर आसीजिब लैरिंग्स, उसके बाद आ जाएगा इसोफेगस, या इसको हम क्या बोलेंगे, फूड पाइप, ठीक है। दिस इज द स्टमक और गैस्टर, ये क्या है, दिस इज duodenum, small intestine. This is jejunum, always JJ will be there, jejunum और small intestine. ये जो पार्ट है, दिस इज इलेयम, बोन में हमने इलियम पढ़ा था, ये इलेयम है, सो दिस इज ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन, अंडरस्टूड। अब ये जो फर्स्ट, ये जहां मिलता है इंटेस्टाइन दोनों, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड इलियोसिकल जंक्शन, एंड इसी इलियोसिकल जंक्शन में एक स्ट्रक्चर झूलता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सीकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ऊपर Sorry, your voice is breaking. तो don't talk those things again. This is your problem because your father is software engineer and internet is a problem. So what I will do, इसलिए आप आराम से सुनिए और देखिए, फाइन। सो ये आपका है, ये सब छोटा बच्चा जैसे क्या, सर राइस बेकिंग, सर वाटर इज फॉलिंग, सर ही इज शाउटिंग, कम से कम अभी आदतें छोड़ दो, बुढ़ा गए हो। यू नो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस पे चिल्लाने से क्या होगा, फाइन। सो दिस इज असेंडिंग कोलॉन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके। एंड नाउ दिस कोलॉन इज पैरेलल टू ग्राउंड, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलॉन, फाइन। ये नीचे उतर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलॉन, these are all large intestine, this is also large intestine। ये जो है, ये ऐसे सिग्मा जैसे शेप बनाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं sigmoid colon, which is also a part of large intestine। उसके बाद आ जाएगा मलस्थली या रेक्टम, एंड अल्टीमेटली आ जाएगा आपका एनस, अंडरस्टूड। सो ये हमने क्या बना दिया, ये हमने एलिमेंट्री कैनाल बना लिया, ये एनसीईआरटी में है, आप देख सकते हो, है कि नहीं। नाउ अब हम लोग कुछ स्पेशल चीजों को लेवलिंग करेंगे, बनाएंगे, जो आपको यहां मिलेगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे। नाउ हियर इन द लैरिंग्स देयर इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन, ये इमेजिनरी लाइन है बिटवीन फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, दिस इज कॉल्ड, चलो सो एक्चुअली वो हमारा डायग्राम तो उड़ गया, तो हम इसमें बनाएंगे, ओके। फाइन, सो नाउ वी विल हैव एन इमेजिनरी लाइन, ओके। एक इमेजिनरी लाइन होगा आपके फॉसेस, ओके, दैट इज बिटवीन फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। एक्चुअली ये जो टाइम है, इस टाइम पे कटता ज्यादा है, तो कभी कटता है कभी नहीं कटता है। एक्चुअली तुम लोग का नंबर बढ़ा नहीं पा रहे हो ना, इसीलिए तुम लोग को अच्छा स्लॉट मिल नहीं पा रहा है, तो लाइक दैट। उधर 11th में 30 स्टूडेंट्स हो गए हैं ना, उनका क्लास धूम चल रहा है। चलो, तो अब ये जो है हमारा, इसको थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। सो हियर वी विल मेक, ना अब यहां देखिए,
ये देख रहे हो ना, ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है। यहाँ एक इमेजिनरी लाइन होगा, दिस लाइन इज कॉल्ड फॉसेस। यहाँ टॉन्सिल्स होता है, ओके, so that is why it is called fauces. It is between pharynx and larynx. ठीक है। उसके बाद यहाँ एक और स्ट्रक्चर होता है जस्ट इस जगह पर, दिया हुआ है, यू सी दिस इज गिवन। सो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये क्या करता है, कंट्रोल्स एंट्री इनटू फूड पाइप। तो जैसे आप च्युइंगम खा रहे हो, च्युइंगम तो पेट में जाता नहीं है, आखू पेट में जाता नहीं है, चिकन पेट में घुस जाता है, ओके। तो गॉर्गलिंग में नमक पानी घुसता नहीं है, बट पीते समय मीठा पानी घुस जाता है। तो व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग टू कंट्रोल इट, सो दैट इज कॉल्ड योर अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, है कि नहीं? चलिए, सो अब इसको और नीचे थोड़ा करके जाएंगे। नाउ हियर वी हैव 3 glands as the diagram itself is showing, okay। ना ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि यहाँ आपका 3 चीजें हैं। कान के पास, पार मीन्स क्लोज, ओटिस मीन्स ईयर। तो ये जो ग्लैंड है इसको कहते हैं पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। तो इसका मतलब क्या है? इट इज क्लोज टू द ईयर, अंडरस्टैंड? इधर आपका ओके इस जगह पर एक और सैलिवरी ग्लैंड होगा। सो दिस इज कॉल्ड योर सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड और सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, ओके। तो ये जो है सब मैक्सिलरी सैलिवरी, so this is the second gland, okay, and ये आपका टंग के नीचे है, so this is called sublingual salivary gland. So this is 1, this is 2, and this is 3. Okay, so these are the 3 salivary glands, and collectively they secrete what? They secrete saliva. Okay, now in the esophagus there is no gland, okay, but goblet cells present, है कि नहीं? But goblet cells present क्या करते हैं? Secretes mucus. इसलिए पता नहीं चलता है खाना कैसे पिचक से स्लिप करके अंदर चला जाता है, okay? So that is why your food is slipping inside. How? Because of mucus. Okay? तो आपका सलाइवा में भी म्यूकस होता है एंड इसमें भी म्यूकस होता है। क्लियर? सो नाउ आप थोड़ा और नीचे जाए। So now we will go into the stomach part. Now stomach में 2 स्फिंक्टर्स हैं हमारे, ओके। पहला स्फिंक्टर ये है, so this is called cardiac sphincter और lower esophageal sphincter. Why? It is close to the heart. इस तरफ आपका हार्ट है तो उसके पास है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कार्डियक स्फिंक्टर। नाउ दिस इज द स्टमक। नाउ स्टमक का अलग अलग पार्ट है, ओके। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टमक आर, तो जो एकदम ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं फंडस, नीचे वाले को कहते हैं बॉडी। हार्ट के पास जो पार्ट है दिस वन, दिस इज कॉल्ड कार्डियक, एंड जो टुवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन है पाइलोरस। ना ये जो पाइलोरस है, ये पाइलोरस ओके फनल जैसा होता है,
तो ये दो हिस्सों में टूटा हुआ है। ये है पाइलोरिक एंट्रम, एंड ये जो नीचे वाला है इसको हम कहेंगे पाइलोरिक कैनाल। ओके, इट विल लुक लाइक ए फनेल। ओके, इट विल लुक लाइक ए फनेल। सो ये जो है दिस इज पाइलोरिक एंट्रम एंड दिस इज पाइलोरिक कैनाल। अंडरस्टूड? तो जस्ट फनल जैसा है। अब इसको हम जोड़ देंगे किसके साथ? डुओडेनम के साथ। फाइन। सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स। अब यहां भी एक स्फिंक्टर है हमारा। सो दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, सो पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसीलिए कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है? बोलो। प्रिवेंट्स स्टमक टू इसोफेगस। ठीक है, खाना स्टमक टू इसोफेगस ना चला जाए, इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर उसको बंद कर देता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है? प्रिवेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टमक। हाँ, नहीं, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, स्टमक में एसिड होता है, समझे कि नहीं? इससे बचने के लिए हमने जुगाड़ किया हुआ है। अब तुम सपोज कूद रहे हो एंड एसिड स्टमक इसोफेगस में चला जाएगा तो जलेगा कि नहीं? तो इसको रोकता है कौन? कार्डियक स्फिंक्टर। उसी तरह से अगर सारा का सारा चला गया इंटेस्टाइन में तो जला देगा, बिकॉज इंटेस्टाइन में तो कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है ना, इसलिए उससे बचाता है कौन? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अंडरस्टूड? सो ये सब आपका कुछ एडिशनल डायग्राम में है हमारे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। ठीक है जी। नाउ इसको क्लियर किया जाए। अब ये जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या? अग्नाशय, पैनक्रियास। ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। तो व्हाट इज हेटेरोक्राइन? एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन। एक्सो का मतलब एंजाइम बनाना, एंडो का मतलब हार्मोन बनाना। ठीक है, सो दिस इज योर पैनक्रियास। ये आपका लिवर है। लिवर इज द मोस्ट वाइटल ग्लैंड but plays no role in digestion directly, as there are no digestive enzymes. Okay, since कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम लिवर में नहीं होता है, इसलिए उसका डायरेक्टली डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। अंडरस्टूड? तो ये क्या करता है लिवर? इट प्रोड्यूसेस बाइल। तो उसका मेन जो हम देखेंगे काम डाइजेस्टिव सिस्टम में, प्रोड्यूसेस बाइल। तो अब गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों आपके एक्सट्रिंसिक ग्लैंड हो गए, आपका पैनक्रियास, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। सेव किया जाए एंड सर गॉल स्टोर करता है वो। हाँ तो बोलो। अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो फिर ग्लैंड कैसे बोलेंगे? कौन सा? सर गॉल ब्लैडर वो तो सिर्फ स्टोर करता है, वो तो प्रोड्यूस ही नहीं करता है, तो ना, फिर उसे उसको ग्लैंड कैसे बोलेंगे? उसको हम ग्लैंड नहीं बोलते हैं, बट वाई इट इज सूडो ग्लैंड कहने से चलेगा, क्योंकि वो जैसे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस आपका हार्मोन बनाता है बट रिलीज करता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तुम कहाँ पढ़ते हो? पोस्टेरियर पिट्यूटरी, है कि नहीं? बट पोस्टेरियर पिट्यूटरी तो कोई हार्मोन नहीं बनाता है। सिमिलरली तुम मोस्ट ऑफ द बाइल यू आर गेटिंग फॉर डाइजेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर। तो इसीलिए क्या होगा? तो ये जो गॉल ब्लैडर है आपके लिए एसेंशियल। तो इसीलिए वी sometimes say it as a gland, you may not say also। अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं बोलूंगा चलेगा, nobody can say force you to tell it to be a gland। okay, वहां कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है
क्योंकि वो ग्लैंड है ही नहीं, तो मैं आपको कैसे मजबूर करूं। अंडरस्टूड? चलिए अब थोड़ा सा इस व्यू को बड़ा किया जाए। ना इस जगह ध्यान दिया जाए नाउ, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो जो पहला पार्ट है आपका इंटेस्टाइन का स्मॉल, वो यहाँ से यहाँ है। ये किस तरह का शेप है? सी शेप है कि नहीं? तो इसलिए सी शेप एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ये स्ट्रक्चर है आपका डुओडेनम, which is the first part of small intestine. Understood? ये आपका डुओडेनम है। उसके बाद डुओडेनम का जो रेस्ट सेकंड है, इसको हम लोग कहेंगे जेजेनम। तो ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, अराउंड 2.5 मीटर लॉन्ग इन कैडावर। कैडावर का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। ठीक है, क्योंकि जिंदा तो कोई देगा नहीं ना नापने के लिए, इसलिए हम कैडावर का नापते हैं। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड इलेयम, ओके, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अराउंड 3.5 मीटर्स लॉन्ग। हो गया नाउ। इसीलिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एक रेड पॉइंट है, लास्ट साइट फॉर एंडोजिनस डाइजेशन। समझ रहे हो? तो एंडोजिनस डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ आवर एंजाइम्स। तो हमारे एंजाइम्स को यूज करके जो हमने डाइजेशन किया, सो दैट इज कॉल्ड एंडोजिनस डाइजेशन। तो इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर सकता है, बट हमारा कोई भी डाइजेस्टिव एक्शन वहां नहीं होता है। इसलिए अगर हम लोग पूछें कि लास्ट साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है ह्यूमंस में, तो वी विल कॉल इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, उसके बाद हमारा शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है यहां से। So this is called the ileocecal junction, and this junction is guarded by ileocecal valve. आपको ileocecal देखो इतना बड़ा बुक है बट गलत बनाता है। ileocecal valve अंदर होगा, बाहर से तुमको valve दिखता है, तो just like that. So this is the ileocecal junction where ileum meets the cecum. Now what is this? This is cecum, which is the first part of large intestine, and ये है appendix, आपको मालूम है। So this is called appendix. Okay, ये vestigial है, टेक्निकली ज्यादा डिटेल हम बाद में बात करेंगे। ये जो है ये आप देख रहे हो इंटेस्टाइन ऊपर उठ रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ascending colon। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कोलन। एंड उसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलन यहाँ दिखाया नहीं है, उसको हटा दिया है, क्योंकि उसको नहीं हटाने से पैनक्रियास नहीं दिखेगा। तो यहाँ आपका ऐसे होता है क्या? सो दिस इज ट्रांसवर्स कोलन। तो इसको यहाँ हमने हटाया हुआ है इन ऑर्डर टू शो द पैनक्रियास। फिर जो नीचे उतर रहा है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलन, which is also a part of large intestine. You don't need to bother about it, okay? Actually ये जो लेक्चर है मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग YouTube में जाके देख सकते हो, okay? So you can subscribe the channel, जो चीज है आप आराम से देख सकते हो।
आज मैंने भेजा भी हुआ है आपको लिंक्स, आप देखोगे जैसे डिस्कशन था हम लोग का स्केलेटल सिस्टम पे, तो वो भी भेजा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो इन योर ऑट टाइम, यू कैन गो एंड सी दैट एंड शेयर विथ योर कालू फ्रेंड्स ऑल्सो। चलिए, तो ये आपका, तो दिस वीडियो विल आल्सो बी अपलोडेड, तो ये भी अगर आप कुछ लिख नहीं पाए, कुछ छूट गया, तो आप बाद में देख सकते हो। यू डोंट नीड टू क्राई दैट वो लाइन कट गया या वो दिख नहीं रहा। ओके, सो IJS इज ऑलवेज टेक्निकली रेडी। नाउ ये जो पार्ट है इसको हम लोग सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं। ओके, दिस इज सिग्मॉइड कोलॉन, दिस इज आल्सो व्हाट, लार्ज इंटेस्टाइन। फाइन। उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ फीकल मैटर स्टोर होता है, सो दैट इज कॉल्ड रेक्टम, एंड जहां से जाता है उसको कहते हैं एनस। ये एनस में दो तरह का स्फिंक्टर है, या दिखा रहा है देखो स्फिंक्टर, तो एक्चुअली एक सर्कुलर स्फिंक्टर होगा, एक इंटरनल स्फिंक्टर होगा। तो दिस इज इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये वॉलेंट्री होता है क्या, इनवॉलेंट्री। सो दिस इज इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ओके, so this is internal anal sphincter, this is involuntary, मतलब under the control of ANS। ये जो है ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, so this is voluntary। तो सपोज आपको बहुत जोर से लैट्रिन आ रहा है बट मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, तो आप कौन सा स्फिंक्टर यूज करेंगे, एक्सटर्नल। ओके, बिकॉज ये आपके हाथ में है, भगवान ने आपके इज्जत का चाबी आप ही के हाथ में दिया हुआ है। अंडरस्टूड? सो वी हैव सेव्ड दिस स्क्रीन।